We had only 14,000 rupees to start our business. We were the first entrants on Amazon also. I checked my Amazon balance and I saw the payout was 10x lesser and I started digging into stocks. तो stock भी warehouse में नहीं है उतना. By the time I realized मेरी ही team ने, मेरे ही juniors ने, मेरे ही under सबने अपनी अपनी GST registrants ली. We were able to create a very small 2 BHK house. So I had to sell that house and we had to pay off our suppliers. So एक product जिसका मैं अकेला seller था, मैंने डेवलप किया, मैंने वो सोर्स किया, डिजाइन किया, डेवलप किया, बनाया, अपने OEM से बनवाया, वही प्रोडक्ट आज 7 सेलर बेच रहे हैं. योर कस्टमर फीडबैक्स, योर नेगेटिव रिव्यूज आर द फ्यूल टू योर बिजनेस. आई हैड टू टेक लोन्स फ्रॉम माय मदर. भाई पैसे लेके काम वापस रीस्टार्ट किया. मैंने एक दिन इसको बोला, मैंने कहा अब नहीं हो पा रहा, आइदर वी विल शट डाउन द बिजनेस एंड दैट विल बी द फुल स्टॉप ऑफ गो हुक्ड ऑल टुगेदर. Welcome to the e-commerce talks with Webby. Today I have a very beautiful couple who is working in their brand called GoHooked, Mr. Gagan and Mrs. Kanupriya. They have worked together and they're running the company together. And welcome here and for sharing the journey with our viewers. Our viewers will definitely will be happy to learn more about you. Why don't you start, Gagan, with sharing your story about your education, then your college years, you meeting Kanupriya. Then you did MBA and then you started the company. Perfect. Thank you, AJ. Thank you for having us here. So, my education, I did my schooling from St. Michael's, and after 10th, I would say, become a little notorious, changed my group, went into commerce, and did not focus on studies. 11th and 12th were bad. Graduation again did from School of Open Learning, SOL. Because I wanted to enjoy the time, be away from parents, and that time, that age, I believe this is what excited us. Those 3 years again did not study well, only focused on here and there, not spending time on studies. Anyhow, pass हुए किसी भी तरीके से. Delhi life, exactly, Delhi life. Delhi और वो भी वेस्ट दिल्ली लाइफ, प्रॉपर पंजाबी लाइफ. So there was relaxed था. Then dad का business, people thought कि यार काम करेगा, enjoy करेगा, क्या करना है, काम तो बापू का काम मिल जाएगा. Then that went ahead. Schooling, graduation complete हो ही रही थी. A friend said कि let's interviews चल रहे हैं and एक call center है, night job मिलेगी, घर से बाहर रहने का opportunity है, best time to enjoy. Let us go for a interview, पैसे भी मिलते हैं. We both of us went there. I did not have a resume. I'll be very true. उसने मुझे अपना रिज्यूमे दिया, मैंने उसमें सारे नाम उसका हटा के और अपना नाम भर दिया. एज इट इज़ लेके चला गया मैं, जो था. उसको इंटरव्यू में पास नहीं हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड इट वाज अ बैक ऑफिस ऑपरेशंस जॉब था. तो बैक ऑफिस जॉब मिला. बैक ऑफिस जॉब में एक्साइटेड था कि रात को कैब आएगी, पिक करेगी, घर से निकल जाएंगे, इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे. वहाँ कॉल सेंटर गया तो लाइफ बड़ी एक्साइटिंग थी. नाइट लाइफ, हसल बसल, बहुत सारा क्राउड, देयर वर पीपल. देन वहाँ काम किया. विद इन 1 month I was selected to transition a process, or as a part of transitioning team we were asked to sign a bond with the company for 2 years that we will work with them and we'll not leave them. We'll do a KT, we'll do a proper knowledge transfer and so on and so forth. So we got selected, went to US, came back from there, started working with the organization. अच्छा काम किया. That's where I met her and both of us met because both of us shared the same cubicle. Right. I think work shift timing की वैसे you were sharing the same cubicle. Exactly. She was in which shift? She was doing an evening shift. Evening shift. And you were in the night shift. So I was doing the day shift. So I would do an early morning shift, 5 o'clock I would log off and she would log in by 5:30 or something. And we had that half an hour time. So वहाँ पे हम we would go out for a coffee, maybe walk around, and that's where I met her. And initial few months were more of an infatuation. Then I proposed to her. We started taking it seriously, and then I told her once, मैंने कहा देखो, I want to get married and मेरे father का इतना business है और let's get it done. That's where she said कि नहीं हो पाएगा, कि my father would not allow. And her father that time was already looking for suitable grooms for her elder sister. और उनका क्राइटेरिया था कि लड़का अगर MBA नहीं है तो
उसका मैट्रिमोनियल पढ़ो ही मत आगे, इसके आगे डिस्कस ही मत करो। और आप कॉमर्स ग्रेजुएट? और मैं कॉमर्स ग्रेजुएट, वो भी 40% बड़ी मुश्किल से उसमें भी एक आध बैक थी वर्स्ट केस सिनेरियो, बट ठीक है, वो करके तो कोई चांस ही नहीं था। इवन फादर, ये था 2004, जब हम लोगों ने 4 या 5 में आई सेड कि मुझे वी वांट टू गेट मैरिज। ही सेड नहीं होगा। मैंने कहा सोल्यूशन क्या है? कह रही आप मास्टर्स करो। मैंने कहा यार मास्टर्स 40% वाले को मास्टर्स कौन कराएगा? तो started exploring, एक कंपनी से बात हुई, they were sending a lot of students outside. Australia was a good opportunity back then. तो ऑस्ट्रेलिया मेरा छोटा ब्रदर भी ऑलरेडी पढ़ रहा था, तो आई स्पोक विद हिम, ही सेड आ जाओ, we'll do masters together, you'll be one semester back. मेरा younger था पर वो पहले चला गया था। he said आप एक सेमेस्टर पीछे हो जाओगे बट आप भी आ जाओ। we went there, went to the university. They said we need at least 2 years of work experience so that we will say that your marks were not great but you've become serious towards your things, and then we can take you in a master's program. उससे बिना ले नहीं रहे थे। तो 2 साल complete करा मैंने, and I went for my masters. I went to Australia, did my masters from Deakin University there. After doing my masters, came back to India, and आते ही I came back in 2007 के end में आसपास आए थे। I started looking for a job, and वो बहुत lean phase था 2007-8, जब बहुत jobs were not there in the market. So whatever job that came across to me, the first offer that came across, मैंने accept कर लिया. Started working with them. After 7-8 months only, maybe ज़्यादा थोड़ा सा, मतलब February 2008 में जॉब लगी थी। मैं 2007 के अक्टूबर नवंबर से ढूंढ रहा था, तो 4 महीने हो गए थे, 5 महीने। जॉब मिली, जॉब मिलते ही told her, she told the family कि भैया ऐसे ऐसे मास्टर्स करी हुई है, और हमारा 2009 में फरवरी में शादी प्लान हो गई, और उससे 6 महीने पहले हमारा ऑफिशियली रोका हो गया, एंड ऑफिशियली वी वर अनाउंस दैट हम शादी कर रहे हैं। वी गॉट मैरिड इन 2009, had our first child in 2010. My son. When my son was born, that time both of us were working. दोनों हम काम करते थे in the media organization itself. वहाँ पे 2010 में my son was diagnosed with the deficiency called G6PD deficiency. Okay. And in that deficiency, it's not very common in India, but genetic deficiency थी जिसमें phenyl, naphthalene, and there were few precautions one had to take, and we could not rely on my mother or anyone else to take care of the child. So that's where we took a hard decision that she will have to leave her job and take care of the child. 2 साल तक she was doing it continuously, and every time we would end up in an argument where she would feel कि यार मैंने मास्टर्स करी है, मैंने इतनी पढ़ाई करी सिर्फ बच्चा संभालने के लिए। एंड मैंने कहा नहीं, बट what else can we do, right? So that's where the idea of business came in. E-commerce was budding in India. fashionandnew.com was new website. Snapdeal ने बहुत ही early stages में started doing products. Right. You mentioned that you started with Fashion and You. Yeah. कुछ 3 दिन का event हुआ. You were saying something. Yes. And then 60-day delivery. 60-day delivery to the customer. So हमने, मतलब the era that we started, it was a very invite-only website. एक website बहुत launch हुई. Gold Square company name था, fashionandnew.com थी company का name, and they were doing flash sales, and it was called very exclusive sales. So invite only website, you will have to register, show your interest, they will send you an invitation link and you will register. आज की डेट में तो it's like you go on आपके pre installed customer की बात में, कर रहे हैं, customer is a invite only. हाँ, customer भी invite only था, sellers तो चांस ही नहीं था। sellers के लिए तो you would have to go to their office, sit with them, शोकेस 100 प्रोडक्ट्स, अलग अलग बाइंग मैनेजर आएगा और वो रिजेक्ट करके चला जाएगा, वो अलग था। बट एज अ कस्टमर you got invite only, then you they have a flash sale, they send a PO to you, एंड वो 3 दिन का फ्लैश सेल चलाएंगे। 3 दिन के बाद आपको सेलर को पीओ रिलीज हो जाएगा, और सेलर पहले कमिट करेगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैं 100 यूनिट्स दे दूंगा, एंड देन दैट फ्लैश सेल विल स्टार्ट। उस फ्लैश सेल में हमने सोर्सिंग सीखी उधर उस टाइम पे, कि प्रोडक्ट सोर्स कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढ के लाते कहाँ से हैं, क्योंकि अब हर तीसरे दिन इवेंट चलाना है, हर रोज 10 इवेंट लाइव होने हैं, और हर इवेंट अलग होगा, यूनिक होगा। तो किसी दिन टेम्पल्स की थीम होगी, तो किसी दिन हुक्का की थीम होगी, किसी दिन ब्रास की आइटम्स की थीम होगी, तो किसी दिन गणेशा थीम होगी, किसी दिन कुछ होगा। तो द प्रोडक्ट्स वर लिमिटलेस। तो वो रोज आपको नई सोर्सिंग करनी है, नया प्रोडक्ट ढूंढना है, कभी कहीं जाना है, कभी
वो स्काउट करने में हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग सीखी. तो बीच में हम वी मिस द स्पॉट कि 2013 में जब हमने हमने कंपनी खोली. शी इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ दैट कंपनी, इन्हीं के नाम पे खोली. एंड वी स्टार्टेड डूइंग, हमारा ऑनलाइन का काम शुरू किया. वी स्टार्टेड ग्रोइंग एंड आई टोल्ड माई कंपनी दैट आई वाज वर्किंग विद कि आई वांट टू लीव नाउ. एंड दे सेड कि अभी माई बॉस वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. ऑब्वियसली नो वन इज. he was like कि नहीं रुक जाओ कर लो. एंड आई कंप्लीटेड माई 5 years. मुझे ग्रेचुइटी का अमाउंट जिस दिन पता चला कि आज मेरा ग्रेचुइटी क्लियर हो गया, सो माई बॉस केम टू मी, ही गेव मी दैट मोमेंटो ऑफ 5 years. एंड आई वेंट टू हिज कैबिन एंड आई सेड आई एम लीविंग नाउ. एंड ही वाज लाइक नहीं एंड ऑल दैट. वो हुआ, चलो हमने छोड़ा. मेरा ग्रेचुइटी फॉर रीजंस अननोन राइट नाउ गॉट डिलेड. And we only had 14,000 rupees in the entire saving account between me and my wife. We had only 14,000 rupees to start our business. वहाँ पे हमारे को फैशन एंड न्यू ने हेल्प करा कि जब हम लॉन्च हुए, जब वो 30 days का सोर्सिंग टाइम मिलता था ना, दैट वुड हेल्प अस टू जो पॉकेट में थोड़े पैसे भी थे लेकिन हमें पता था ढूंढ लाएंगे प्रोडक्ट, तो ढूंढ लेंगे यार, कोई बात नहीं. और जब तक मेरा ग्रेचुइटी पे ऑफ आया 2 महीने के बाद, वी वर एट अ कंफर्टेबल सिचुएशन बैक देन कि हमें समझ आ गया था कि एक रोटेशन बन गई थी. अच्छा, उस टाइम पे फैशन एंड न्यू वुड ऑल्सो हैव 60 days पेमेंट टर्म्स विद सेलर्स ऑल्सो, कि हमारा प्रोडक्ट जाने के 60 days बाद पेमेंट आएगी, क्योंकि दे वर ऑल्सो डिलीवरिंग द कस्टमर्स इन 30 days. तो वो लॉन्ग स्टोरी चलती थी. तो देन बोथ ऑफ अस स्टार्टेड building the brand That together. was the normal e-commerce landscape at back then. I think Snapdeal Right. वगैरह भी आपने बाद में किया ना. स्नैपडील भी किया हमने, स्नैपडील किया, फैशन एंड न्यू किया, Amazon, हमने फ्लिपकार्ट भी शुरू किया था. फ्लिपकार्ट वाज वेयर, जब फ्लिपकार्ट पहले बुक्स करता था शुरू में, दैट वाज ओनली डूइंग बुक्स. जब उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वी स्टार्टेड सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स विद देम आल्सो. वी वर द फर्स्ट एंट्रेंट्स ऑन Amazon आल्सो. Amazon केम टू इंडिया इन 2014. उससे पहले Amazon इंडिया में नहीं था. और वो जब आया था तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट 100 odd sellers, मे बी अंडर द फर्स्ट 1000 sellers हम रहे होंगे who were onboarding onto Amazon, because we knew that Amazon was so big. तो हमने शुरू में we've been very true to the system. हमने शुरू से काम किया ई कॉमर्स के अंदर. So आगे आपने बोला कि you were sitting like in front of Snapdeal for like a few hours also. Oh yes, तो कभी there were situations she would you say, mentioned in the side talk. Huh? yeah. So आप अकेले या कोई? हम दोनों जाते थे. तो क्या था, टीम तो थी नहीं. हाँ. वी वर द टीम, ये और मैं ही टीम थे. स्टाफ भी हायर्ड नहीं था, कुछ नहीं था. वी वर जस्ट द टू ऑफ अस. वी वर डूइंग एवरीथिंग. सोर्सिंग के लिए भी मैं ही अपने 2-wheeler पे जाके सोर्स करके लाता था. पैक हम दोनों मिलके करते थे. स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ आवर हाउस. तो बहुत छोटे से स्टार्ट किया था. कहाँ पे? हम उस टाइम करोल बाग में रहते थे. करोल बाग में. तो सदर बाजार एंड ऑल दोज हब्स वर वेरी वेरी क्लोज टू अस. टिप टॉप मार्केट, गफार एंड ऑल दैट वेरी वेरी क्लोज. बट वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. तो हम लोगों ने सोर्स करके लाना, पूरा दिन मैं सोर्स करूंगा एंड देन इवनिंग में ये और मैं पैक करते थे. तो हमने जब स्नैपडील पे ऑनबोर्ड होना था, आई मीन हमारा जो उस टाइम पे मैनेजर हुआ करता था, आई वुड नेम हिम. तो उन टाइम पे वो ऑनबोर्ड करने के लिए ना, देयर वाज हम प्रोडक्ट्स लेके जाते थे और हमारे को रिसेप्शन पे बिठा देते थे और हमें कहते थे कि आज वो आए नहीं है. Okay. And we could see him walk up, go out, have a tea, come back, have a smoke break, come back, and we were not able to talk. We were not allowed to talk because वो बहुत ही एकदम हवा होता था. पहले e-commerce was like a हवा. नहीं, I think ये भी था ना, they wanted to reduce the price, तो उसका भी तो कुछ तरीका, I think. Price was secondary. First thing, onboarding was a very difficult thing with them because क्या होता था कि आप बहुत न्यू सेलर हो. I've seen some marketplace, अब in US वगैरह में कुछ marketplace, don't want to name it, बदनाम है कि they get a few vendors बैठाते हैं केबिन में and then they ask, keep them waiting for 6 hours. Yes. Then they started negotiating. Yes. Rather than do it straight away. But that's a different state, right? This is where you're sitting at the reception. Onboarding के लिए. वो आ ही नहीं, आप प्रोडक्ट तो का प्राइसिंग ऐसा क्यों होगा, मतलब for creating importance, significant, बहुत nascent stage था. अच्छा. Initial stage of the e-commerce boom था. Were they busy or they were like? They were not busy. They were not busy. But sir, game is about हाथ ऊपर और हाथ नीचे. हाँ. आप मांगने जा रहे हो, आपका हाथ नीचे है. You are treated But is different that, way. I mean, you are sitting there with your wife, and then you starting up a business. I mean, at least, I mean, it's a business. It's not like you're not an employee, even though you are together. And then there's someone else who doesn't have their thick in the skin of their Snapdeal. I mean, Snapdeal is not that big player. हाँ. And you both are like part of a business. How does Yes. it feel like? I mean,
इट फेल्ट वेरी इंसल्टिंग यार, टू बी वेरी ट्रू. एट टाइम्स आप 3 दिन बैठ के आ चुके हो यार, 3 बार गए, 3 बार बिठाया रिसेप्शन पे, वापस भेज दिया 4 घंटे बाद. कई बार लगता है कि व्हाट इज योर एजुकेशन, व्हाट इज देयर एजुकेशन. Exactly. That is where we would have discussions, long hour discussions कि हम is it the right space, हमें ये करना है. हम घुस भी गए, हमने we were able to crack down after third or fourth meeting. We were able to crack one junior level to that guy. उसके जूनियर वॉज अ वेरी गुड गाय. ही ऑनबोर्डेड, ही मेट अस, उसने हमारे से प्रोडक्ट समझा, हमारे प्रोडक्ट को देखा. उस टाइम लकीली हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ कि उसका जो जूनियर था ना, मैंने उसको फैशन एंड न्यू का लिंक भेज दिया कि यार मेरे ये 6 इवेंट चल रहे हैं, ये 6 के 6 मैं दे रहा हूँ, और इनमें हर एक में 60 70 आर्टिकल्स बिक रहे हैं, और वो सारे के सारे मेरे हैं. नाउ वी कैन ऑफर द सेम ऑन स्नैपडील ऑन अ लॉन्गिटिविटी रेगुलर बेसिस. ये सामान मेरे पास है. दैट्स वेयर दे बिकेम एक्साइटेड एंड दे सेड अच्छा चलो आओ, लेट्स डिस्कस. दैट्स वेयर वो फर्स्ट स्टेज हुआ हमारा. हम दोनों गए, बैठे, फिर दैट मैनेजर डिडंट कम इन पहली बारी मीटिंग में, बट सेकंड मीटिंग ही केम इन, जॉइंड. Any feedback on the experience? What is your takeaway like after this experience? I mean, what would you do differently? या तो होना ही था? नहीं, ये होना था. आई थिंक हमारे जैसे बहुत सेलर्स थे. हम बस हम पीछे पड़ गए थे. हमें करना है, वी हैव टू डू इट, बिकॉज देयर इज नो अदर थिंग ना. और कुछ आता नहीं. ई कॉमर्स ही आता है, और फैशन न्यू कर रहे हैं, प्रोडक्ट है, और स्नैपडील नया है. फ्लिपकार्ट बुक्स कर रहा था, तो फ्लिपकार्ट अभी आया नहीं था. तो ये हमारा एंट्री पॉइंट था. उस टाइम हमने इसमें काम किया, बहुत अच्छा काम किया. We also see stories of Snapdeal founders also sitting together, some like I mean ऐसे दोनों साइड की स्टोरीज है. You sitting at Snapdeal office, Snapdeal founder when they were starting like initiating, sitting at their vendor's office. यार I'll tell you exactly, जो स्टेक होल्डर होगा ना, वो हमेशा डाउन टू अर्थ होगा, क्योंकि उसने हार्डशिप देखी है. ये जो B-Sool and these graduates and those people who get that job at a particular post, वो अपने आप को बॉस समझने लगते हैं. बॉस कभी भी अपने आप को बॉस नहीं समझता है, बट जिसको पावर मिल जाती है वो कई बार अपने आप को बॉस ट्रीट करते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग दैट स्नैपडील फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेवल वाज बैड. वो कोई कैटेगरी मैनेजर होगा, not to specifically name anything. Yes, it's very generic. कभी ऐसा नहीं. I have been to Fashion and New. जब मैं पहले वहाँ गया, जो मेरा फर्स्ट बायर था वो मेरे से नाराज होकर उठ के चला गया, और देयर वाज अनदर कैटेगरी मैनेजर सिटिंग जो कोई और वेंडर से मीट कर रहा था. जैसे छोटा कैबिन था, हम यहाँ बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरा कैटेगरी मैनेजर कुछ और किसी और से बात कर रहा है, और मैंने उसको बीच में बोल दिया कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरे पास भी है. और वो मीटिंग मेरी उससे फ्रूटफुल हो गई. मैं जो पिच करने गया था वो नहीं बिका. We are dealing with human, we are not dealing with companies. Exactly. अभी एक पर्सन है, वो what mood he is sitting, किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, घर से क्या सुन के आ रहा है. तो you're dealing with human beings. We are dealing with human beings. Yeah. They can have they have change of mind. Yeah. They have bad days, good days. Yeah. Education background. सब फर्क है. We cracked our first change of category on Fashion and New. We were only doing apparels उस टाइम पे. Ladies कुर्तीज बेच रहे थे. तो जो हमारी बायर थी कुर्ती की, फर्स्ट इवेंट वेंट लाइव, बहुत अच्छा बिक गया. शी सेड मुझे 6 दिन में इवेंट लाइव करना है. पैसे हमारे पास थे ही नहीं, जितने थे उससे हमने कपड़े बनवा दिए थे. उसने कहा 6 दिन में फिर से इवेंट चाहिए, फिर प्रोडक्ट लाओ. मैंने कहा कहाँ से लाए, पैसे ही नहीं है. 60 डेज पेमेंट साइकिल है. इन्होंने मेरे को, हमने इनकी फ्रेंड से बनवाया था. हर फ्रेंड वॉज इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो उनसे बनवा के हमने किसी तरह वो पूरा किया. वो नाराज हो गई, कहती मैं तुम्हारे को आज के बाद कभी इवेंट नहीं दूंगी. यू विल नेवर गेट एन इवेंट फ्रॉम मी. और उसी के साइड पे एक बैठा हुआ था, एंड ही वॉज डीलिंग इनटू होम स्टोरेज का कोई आर्टिकल मांग रहा था. वो पेंटिंग्स मांग रहा था आई बिलीव. और मेरे को पेंटिंग्स का मैन्युफैक्चरर वॉज फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि आई न्यू. तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट तो मैं दे दूंगा. तो वो कपड़ा तो हमारा वहीं दी एंड हो गया पहले इवेंट के बाद ही. बट जो होम स्टोरेज था वो एकदम से होम में बहुत आर्टिकल्स मिल गए. बुद्धा सीरीज, इवेंट, पेंटिंग्स, आर्ट फ्रेम्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स, कुछ भी. तो हम उससे इवॉल्व होके, तो इट इज़ नेवर, आई वुड नॉट से स्नैपडील वॉज नॉट गुड, इट वॉज अ ग्रेट कंपनी टू स्टार्ट. हमारे को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया उसने, बहुत अच्छा काम कराया. हमारा ब्रांड का नेम भी उन्हीं का दिया हुआ एक तरीके से. सो कमिंग बैक टू you were discussing about in the side stage your business journey after, I mean you had some ups and downs. We've had up ज़्यादा, कम, down ज़्यादा, क्या, I mean whatever you want to share. And then I mean it is very fascinating. I mean you husband wife running through this stage. So please, if you are okay to share with us. Yes, definitely. I came from a corporate background. मुझे लगा यार corporate में ना
सब कुछ टाइम टू टाइम होता है. हाँ. सैलरी 30th को क्रेडिट मारते हैं बिकॉज एम्प्लॉयज़ को चाहिए होते हैं. बिजनेसेस कॉर्पोरेट की तरह चलाएंगे एंड कॉर्पोरेट की तरह ग्रो करेंगे, कॉर्पोरेट का स्किल करेंगे, कॉर्पोरेट की तरह स्केल करेंगे. एंड फर्स्ट थिंग दैट केम, मैंने एंड दैट्स अ स्मॉल स्टोरी, बट मैंने एक अकाउंटेंट हायर किया. हाँ. Taught him for 2 months how to do all the accounts, how to do numbers, how to do everything. Second month, I generally used to pay on 30th of the month. मैंने पे करा. Next day he did not turn up. The day I told him कि तेरा कल से you will single-handedly manage all the accounts now. You don't need to ask me for books. Next day he didn't come in. He didn't show up. And I asked my team. Then my team said कि भैया वो तो he had a course to do and he said मुझे आज salary मिल गई है, कल से I will not come in. That experience made ensure कि अब now I pay a salary on 7th and I just hold those 6-7 days. It's not a hostage, but it gives me that comfort कि if you want to leave your job, please let me know at least a little few days in advance so that I can give you your full and final on the day. If I give it to you on 30th, because you work till 30th, you will simply say I am leaving. So for your pay till 30th, I will pay you on 7th. If you want to leave, at least let me know on the 1st, 2nd, 3rd so that I can do your full and final. I have a replacement for you ready. तो वो बिजनेस लाला जी, स्टाफ ने ही लाला जी बना दिया फ्रॉम अ कॉर्पोरेट टू लाला जी. बट अब कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर था तो हायरार्की बना दी, टीम बना दी, गिव OM ऑपरेशंस मैनेजर को ऑथराइज करा कि जी आप हायर करो, यू डोंट नीड टू स्क्रीन थ्रू मी. That guy intelligently hired everyone from his family, not letting me know because अब वो नाम कुछ किसी का कोई बुआ का बेटा है तो कोई कहीं है, तो I was okay with the hiring. तो हमारा काम अच्छा चल रहा था 2016-15 तक. बहुत we were making good money, and complacency set in कि यार अब तो life settled है, but staff will manage. मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, लाला जी can sit home and monitor work from there. Vacations हमारी राइट है. हाँ वो करते रहे. 2016-17 onward वो थोड़ा सा घर में कुछ situations हुई. My father was not well and we had a very huge turmoil. हमारा business अच्छा चलते चलते payments, because obviously e-commerce में ना delayed payments हैं, कभी hold होके चलती हैं 60 days 30 days long period होता है. तो सप्लायर और बायर की पेमेंट्स, मतलब जो हमारी पेमेंट्स थी और हमारे सप्लायर की पेमेंट्स थी, वो इन टैंडम चलती रहती थी. यहाँ से आता था, वहाँ रिलीज होता था. वन डे वन ऑफ माई सप्लायर सेड के भाई अरोड़ा जी पेमेंट चाहिए, एंड दैट्स वेयर आई ओपनड हिज लेजर एंड रियलाइज आई हैव टू पे एक्स अमाउंट. आई चेक्ड माई अमेजॉन बैलेंस. मैंने कहा शायद ट्यूसडे को बैलेंस पे आउट आएगा, मेरा ट्यूसडे पे आउट आता है. एंड आई सॉ द पे आउट वॉज 10x लेसर. ओके. एंड आई रियलाइज, मैंने कहा कुछ तो हुआ जो इतना पे आउट देना है. एंड आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू स्टॉक्स. मैंने कहा शायद स्टॉक्स पड़े होंगे, तो स्टॉक भी वेयर हाउस में नहीं है उतना. एंड बाय द टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरी ही टीम ने, मेरे ही जूनियर्स ने, मेरे ही अंडर सब ने अपनी अपनी GST रजिस्ट्रेशन बिकेम वेरी कॉमन. सब ने अपनी अपनी GST रजिस्ट्रेशन ली. नाउ एज आई टोल्ड बैक स्टेज ऑल्सो, हमारे पास whenever a business launches 100 products, not 100 sell. टॉप 20 का एक फनल होता है, उसमें से टॉप 20 बेस्ट सेलर्स निकलते हैं जो आपका अच्छा रेवेन्यू देते हैं. 50 होते हैं जो आपका धीरे धीरे मिड ईयर में चलाते रहते हैं, आपका चलता है, खर्चा पानी निकालते हैं. और जो लास्ट का 20 या 30% होता है ना, ये होता है डेड स्टॉक, जो आपको हॉन्ट करता है. लेकिन आप कहते हो यार किसी तरह पार्ट ऑफ द बिजनेस है, 10 लॉन्च में 2 ही 3 बहुत अच्छे चलेंगे, बाकी 5-6 चलेंगे और 3 तो फ्लॉप होंगे. They were very smart. They took away all my top sellers. Because the buying guy was the same, he sourced it for himself also and for others also in his own team. अपने ही cousins, भाई, मासी, सबके लिए उसने सोर्स कर लिया. So एक प्रोडक्ट जिसका मैं अकेला सेलर था, मैंने डेवलप किया, मैंने वो सोर्स किया, डिज़ाइन किया, डेवलप किया, बनाया, अपने OEM से बनवाया, वही प्रोडक्ट आज 7 सेलर बेच रहे हैं. तो जो बिजनेस अगर मैं 1000 यूनिट्स बेच रहा था, वो डिवाइड हो गया बिटवीन 8 सेलर्स. और उसमें भी आई एम द मोस्ट एक्सपेंसिव, बिकॉज इंफ्रा मेरा यूज हो रहा है, प्रोडक्ट मेरा यूज हो रहा है, पैकेजिंग मेरी यूज हो रही है, वेयर हाउस भी मेरा यूज हो रहा है फॉर दैट डिस्पैच. तो वो एक सेट डाउन हुआ. बाय द टाइम वी रियलाइज्ड इट वाज वेरी वेरी डाउन. वी हैड टू, हमने अपने पूरे बिजनेस जर्नी में वी वर एबल टू क्रिएट अ स्मॉल, very small 2 BHK house for ourselves, which we had rented and we were making some rental incomes out of it. So I had to sell that house, वो बेच के, and we had to pay off our suppliers. सबसे पहले हमने अपने suppliers को pay off किया because Amazon से pay out negligible था. Then
रीपरचेज करने के लिए मार्केट में नाम खराब हो गया कि परचेज करने के लिए पुराने सप्लायर से हम लेना नहीं चाहते थे, बिकॉज ईगो बीच में आता था कि तुमने ही मेरे एम्प्लॉय को क्यों दे दिया, तो उनको कट ऑफ कर दिया, बता तो देते। तो अब उन्होंने तो जो किया, उनको कट ऑफ कर दिया। नया सप्लायर पहले पैसे दे के माल देता है क्योंकि आपका क्रेडिट टर्म नहीं बना हुआ, नो वन नोज यू। वो फेज था जब मुझे आई हैड टू टेक loans from my parents, my mother, I lost my father in 2018, so I had to take loans from my mother. भाई पैसे लेके काम वापस रीस्टार्ट किया, रीबिल्ड अप किया, बट अगेन इट वाज बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज रेंटल्स एंड सैलरीज वर नॉट एबल टू कवर अप फॉर द एम्प्लॉइज। मैंने एक दिन इसको बोला, मैंने कहा अब नहीं हो पा रहा, एंड आई वुड आइदर वी विल शट डाउन द बिजनेस एंड दैट विल बी द फुल स्टॉप ऑफ गो हुक्ड ऑल टुगेदर, या फिर टेम्पररी बेसिस पे आप शुरू करो नौकरी, सो दैट यू कीप द फ्यूल कमिंग इन, घर के खर्चे संभाल लो। आई डोंट वांट एनीथिंग इन द बिजनेस, मैं बिजनेस को धीरे धीरे फिर बिल्ड कर लूंगा, बट आई एम नॉट एबल टू पुल आउट मनी फ्रॉम देयर एंड गिव इट फॉर माई किड्स। एंड माई सन वॉज ग्रोइंग, और वो क्रिकेट खेलता है तो उसको उसमें बहुत पैसा लगता है। सबसे बिगेस्ट एक्सपेंस था मेरा रेंट का। द वेयर हाउस दैट आई हैड अ 10,000 स्क्वायर फीट है वेयर हाउस, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, मुंडका में था। It came to a situation, I even went to my landlord, मैंने कहा भाई इसको आधा करवा दो और मेरा रेंट आधा हो जाएगा, I am not able to give you the rent. They said नहीं होगा, and things didn't work. My staff would get free by 11 o'clock, हमारे पास काम ही नहीं था कुछ करने को। They would ask कि भैया कैसे करेंगे, 3 लोगों की टीम, 4 लोगों की टीम in a 10,000 square feet warehouse, we did not have work at all. जनरली कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है ना, इतने साल के लिए लेना पड़ता है, लाइक हमने हमारी वो लीज 3 साल की लीज थी। हमने कोशिश करी कि वो टूट जाए या कोई छोटा वेयर हाउस मिल जाए, उस टाइम पे बस वो नहीं था, नहीं, इट वाज नॉट डेस्टिन्ड। सो रेंट वाज द एक्सपेंस, रेंट एंड सैलरीज, ये दो सबसे मुश्किल था। ट्रैवलिंग तो आई वाज मेजरली, वी वर आइदर डूइंग अ मेट्रो से, कीर्ति नगर से मेट्रो लेके या कोई रास्ता, मतलब वी वर avoiding all those expenses के business को related। back office did not exist back then, कोई back office था ही नहीं। I was the one who was doing listings, I was the one who was doing everything, she was the one who was doing, so she had already taken up the job। I still have inbox में mails where she's given me Amex में जो openings नहीं निकली हैं कि यार finance में opening निकली है, आप उसको wrap up करो, यहाँ आ जाओ, हम दोनों मिलके बच्चों को support करते हैं, let's aim for this। 2023 मेरा Amazon में ईटेड के साथ मेरा ऑनबोर्डिंग हो गया था उससे पहले। सो 2020 में Alibaba was hosting an event where they wanted, तो उनका कोई इंडिया में काउंटर पार्ट, they were employees, they were looking for Indian sellers where they can showcase those sellers to China. Event to China. So they invited me over. So I had an invitation from Alibaba. They invited me over for a talks there. So we were on the stage where I was supposed to talk about how e-commerce is and what Indian buyers are doing. Alibaba was trying to expand into India. That's why they were calling. Exactly. So they were expanding globally. They were their global front में जो उनका world over manage करते थे, John Kaplan was the name of the guy. So they were calling buyers from different countries. So they had buyers from 2 major countries, India and US. US because they have a huge buying power. इंडिया बिकॉज वी हैव ह्यूज नंबर्स, उनको पता है वॉल्यूम्स इंडिया से मिलेगा, एंड बाइंग, असली बाइंग जो डॉलर्स की है दैट विल हैपन फ्रॉम यूएस। सो दीज टू काइंड बायर्स वी वर द 2 buyers from 2 different countries who were invited, and then there was a stage on podium where all of us were supposed to speak in front of 3,000 odd Amazon exporters. Yes, so that's a great experience, huh? It was a great experience. It was a great learning exposure where I made a few connects. People walked up to us, gave us their business cards, they wanted to explore India, but हम ही उसी situation में नहीं थे उस time to but learning तो हुई काफी ना, learning थी, that was a great learning, so that's great. So over these years, I mean, you mentioned you had a lot of ups and downs and you both held together, your kids were growing up. What are your learnings in terms of business की अगर बात करें तो, but anything you want to share? my always 2 cents would be persistence, बहुत जरूरी है business में, and you knowing everything is, you have to be jack of all trades, you don't have to be master of all of them. आपको पता सब होना चाहिए, क्रिएटिव्स कैसे बनेंगे, ग्राफ्स कैसे बनेंगे, ग्राफिक्स कैसे बनेंगे, बैक एंड में लिस्टिंग कैसे होगी, everything you need to know that to survive and be very sure of your numbers. People generally don't take care of numbers and they believe कि अगर मैंने 100 का लिया 200 में बेच दिया I will make 100 rupees. It doesn't happen. You have to understand
there are so many marketplace fees. आप normal fees, normal calculations will never ever make it easy for you. If you're not strong with your numbers, you are bound to go down. Any brand. हम लोगों ने ना बहुत कैटेगरीज करी, लेडीज कुर्तीज, गिफ्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन इवेंचुअली हमने मोबाइल एक्सेसरीज का भी काम शुरू किया. हम करोल बाग बैठे थे, गफार मार्केट बिगेस्ट मार्केट फॉर मोबाइल एक्सेसरीज. करेक्ट, मोबाइल वी स्टार्टेड डूइंग मोबाइल कवर केसेस, टेम्पर्ड ग्लासेस, सब कुछ हमने शुरू किया. एंड ब्यूटीफुल कैटेगरी, बहुत बिकता है. आप दिन में एक टेम्पर्ड ग्लास 1000 पीस बिक जाते हैं. एंड दैट्स द वर्स्ट कैटेगरी टू जंप इनटू. ओके, बिकॉज अभी क्या होता है, व्हेन द Amazon or any e-commerce platform, every e-commerce platform is a customer first platform. बिल्कुल. They are not the seller first platform, they are a customer first. Because customer offline पे ज़्यादा believe करता है, online पे कम करता है, और उसका believe लाने के लिए even if that means killing someone, they will do it because Amazon customer को पहले हमारे को shift करना है from an offline space to an online space. Right. वो comfort आएगा जब उसको ease of return मिलेगा. अब इसमें कुछ sellers जनरली दे टेक इसमें लूप होल्स निकाल लेते हैं. अब आपने मोबाइल टेम्पर्ड वी स्टार्टेड सेलिंग, कस्टमर ने प्लेस करते हुए उससे टूट गया. उसने ये नहीं बोला कि मेरे से टूट गया, उसने टिकट ये रेज कर दी, ब्रोकन रिसीव्ड. अगर आप 1000 यूनिट बेच के खुश हो रहे हो तो आप 600 यूनिट लेके रिटर्न में आप, दैट्स व्हाट किलिंग दीस ब्रांड्स राइट नाउ. रिटर्न्स के ऊपर, इफ यू आर नॉट मॉनिटरिंग योर रिटर्न्स, इफ यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग बैक टू यू, इट इज your customer feedbacks, your negative reviews are the fuel to your business. They will help you decide कि आपको ये प्रोडक्ट करना है, कैसे करना है या नहीं करना है. जो ब्रांड इस पे फोकस नहीं करता, जो सिर्फ सेल्स को एक यू नो, यू टेक इट एज अ टारगेट कि यही मेरा टारगेट है, बिजनेस में जो मर्जी रिटर्न आए, वो सर्वाइव नहीं है. उसके अलावा कस्टमर रिटर्न्स और कस्टमर रिटर्न्स, द रीजन फॉर द रिटर्न एंड नेगेटिव रिव्यू बोथ, और रिव्यूज. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट, you find a great product, you will never write a review. We don't have, as humans, we don't have the patience to write a review. But एक product खराब जाएगा, customer will do everything in his power. And the first power that a customer has is to write a review. और उससे वो पहला काम यही करता है कि मैं रिव्यू लिख देता हूँ कि बॉस मुझे खराब मिला, मुझे मजा नहीं आया, दिस इज. और वो रिव्यूज आर सो इम्पोर्टेंट, दे विल हेल्प यू डिसाइड how good a packaging you want. If it is a packaging related issue, if it is a product quality related issue, if this is what kind of a concern it is being taught to you by your customer returns. Never underestimate them. Never think कि यार customer बेवकूफ बना रहा है, इसको चाहिए नहीं था. सर उसको चाहिए था. He was ready to pay for it. He's already paid for it. And if he is returning back to you, there is definitely something which is not right. Make it correct, you will grow. अगर नहीं तो आपका एंड ऑफ लाइफ आएगा उस प्रोडक्ट का. बी रेडी फॉर इट. राइट. सो वन इज, जैसे 3 चीज बताई, एक तो सेल्स देखना है, बट उससे ज्यादा एक कस्टमर रिटर्न्स एंड द कस्टमर रिव्यू, जो कस्टमर फीडबैक है, उसको एक डिलीजेंटली देखना है. टेल मी सम ऑफ द नंबर्स यू वर मेंशनिंग अबाउट टाकोस, आर्कोस, व्हाटएवर. राइट. सो अभी क्या है कि एज अ कैटेगरी में आपने कुछ कस्टमर सेगमेंट भी बताया था. हाँ. सो कस्टमर सेगमेंट क्या है, व्हेन वी स्टार्टेड ये मोबाइल एक्सेसरीज अगेन वाज अ सेगमेंट व्हिच इज अ वेरी यूथ ओरिएंटेड या वेरी यंग ब्लड ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ बिजनेस, जिसमें लगता है कि आज वी वर प्रिंटिंग ऑन डिमांड. वी हैड अ पीओडी प्रिंट ऑन डिमांड का मशीन हमने लिया. वी वर स्टार्टिंग मोबाइल कवर्स प्रिंट करते थे. कस्टमर्स वुड फील आज मेरा मूड डिफरेंट है, मैंने हनुमान जी या XYZ कोई भी डिजाइन का एक प्रिंट मंगवा लिया. 2 दिन बाद मेरे किसी फ्रेंड ने बोला यार व्हाट अ बेकार कवर, यार ये कौन सा मंगाते हैं. एंड Amazon, बिकॉज इट गिव्स यू अ 30-day रिटर्न पॉलिसी, इमीडिएटली कस्टमर रिटर्न मार रहा है. Our segmenting, our targeting of the customer was very wrong. We were targeting a very early stage buyer who is very impulsive right now. आज कुछ है और 2 दिन बाद उसका मूड कुछ और है. आज iPhone चाहिए तो कल को Samsung का फोल्ड चाहिए. So that's the customer we were targeting. And when you work in a long tail category, you will never be able to find heroes. Your long tail categories will always kill you. Always find heroes with your What's small the long tail category? So long tail category means, for example, when we were doing mobile covers, a long tail category would have iPhone 12, 16, 15, 17, 18 and then it will have 1000 designs in every cover. So आप imagine करो what long tail you have. You will never be able to find a hero there. आज किसी ने बटरफ्लाई खरीद लिया तो कल किसी ने कोई और प्रिंट खरीद लिया. Be very specific about what you are buying, what you want to sell. Never sell a long tail category. आपको लगा कि यार ये 10 तरीके की टोकरी है मेरे पास या 10 तरीके का प्रोडक्ट है, मैं यही बेच रहा हूँ. When you become long tail कि मैं इसको प्रिंट ऑन डिमांड कर देता हूँ या मैं इसको
अब मोबाइल्स में ही अगर हम देखें, the people that we are sitting here will have, all of us will have different models. Someone who sells a mobile cover, because I've dealt with that category, that's why I'm saying, someone who deals with mobile cover would have such a pain managing inventories. क्योंकि मेरे को iPhone 10 का भी cover रखना है, 12 का, 14, 13, 18, then I have to manage dispatch and returns also. And returns will also be managed model wise, cover wise, के Huawei का ये है, Samsung का ये है, Oppo का ये है, and there are so many models, so many designs. It is a very long tail category. It is one category that is, मतलब that I would not want any seller, any new sellers should be very careful about what they are jumping into. Long tails will never take you very long way because and they are flipping very quick. आज से 3 मॉडल पहले आईफोन का चार्जर अलग था, अब टाइप सी चार्जर है, नेक्स्ट में अलग कुछ आएगा. आप कितना फ्लिप करोगे, आप कितना चेंज करोगे, हाउ क्विकली आर यू रेडी टू चेंज फ्रॉम दैट, और कितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऑफ द शेल्फ चला जाएगा. लास्ट ईयर का आईफोन 17 इस साल का ऑब्सोलीट होने वाला है. करेक्ट. टेल मी द काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट यू जनरली सेल ऑन. आपने ओपीपी के बारे में बता रहे थे, राइट. जस्ट टेल मी द प्राइस पॉइंट फर्स्ट. सो अभी क्या है कि लॉट ऑफ वेबसाइट्स एंड लॉट ऑफ ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स इज द न्यू एरा. they target for OPPs, opening price point पे ट्राई करते हैं कि यू नो ब्रांड को ऑनबोर्ड करो, OPP पे ले आओ. सबसे सस्ता सबसे अच्छा नहीं है हमारी ओपनिंग प्राइस पॉइंट. नॉर्मली ओपीपी में और बाकी प्राइस में कितना डिफरेंस होता है? See, opening price point could be something where a panel would simply ask you for I'll tell you a very recent example. Someone was selling a pillow for 149 rupees. Okay. And that's an OPP for them now. For quick commerce and e-commerce, now that's the OPP. They want sellers to sell at that price. क्वालिटी लो होती है उसमें. Definitely. Sir, तेल तिलों से निकलेगा ना. मैं 149 में बेस्ट प्रोडक्ट कैसे दे दूं? मैं आपको कैसे मेमोरी फोम का पिलो दे दूंगा? I cannot give you a product at that price point. So always ensure that you don't deviate from your quality, even if your portal or any buyer asks you to go below that. आप बोल दो this is not my substand. I don't want to. You have to take a stand that even though on quick commerce or e-commerce you are not a brand or brand as say, but you don't want to go below your own threshold. कि यार ये प्रोडक्ट मैं अपने घर में यूज नहीं करूंगा, मैं बेचूंगा नहीं. जिस दिन आप ये डिसाइड कर लोगे कि मैं ये प्रोडक्ट अपने घर ले जाके अपने बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, तो आप उस प्रोडक्ट को मत बेचो. आपका लॉन्ग विजन ही वहीं से निकलेगा. धंधा बनेगा तभी जब आप इस चीज के लिए रेडी रहो. सिंपल पॉलिसी रखो, खुद यूज करूंगा तो औरों को दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. आई विल नॉट सेल अ प्रोडक्ट इफ आई एम नॉट एबल टू सेल यूज इट माई सेल्फ. वेरी क्लियर. एंड एट द मोमेंट आपकी कैटेगरी के बारे में थोड़ा बताइए. So at the moment we are majorly focused into home as in any home solutions. We are not into electronics. We don't do electronics, but any kind of home decor, showpieces, storage articles, laundry baskets, bags, any kind of Pinterest kind of decor articles. We are doing all of it. We are into gardening products, all sort of your gardening products, like your gardening tools to your cutters to pruners, hanging pots, railing pots, as big as those fiber pots. So we have pots as expensive as 9,000 rupees. And believe me, many e-commerce sellers would say नहीं बिकता है. सर 9,000 रुपीज वाला प्रोडक्ट महीने में 40-50 यूनिट बिक जाता है. आज भी बिकता है. एंड दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट हैज टू बी गुड. कस्टमर का एक ट्रस्ट बन जाएगा जब आपके ऊपर. व्हेन यू स्टार्ट पुलिंग दैट कस्टमर, ऑर्गेनिकली आपकी तरफ पुल आ जाएगा. यू आर एबल टू सरपास दैट. तो ओपीपी इज नेवर मेनी न्यू ब्रांड्स get attracted towards the OPP. कि OPP करे तो repeat buyer मिलेंगे. OPP is never a repeat buyer game. OPP is only you're pushing your product और वो instant gain देगा आपको. नहीं, ट्रायल दे दिया, immediately गिरेगा. ट्रायल प्रोडक्ट निकाल दिया OPP में. सर ट्रायल प्रोडक्ट आपने OPP निकाला, आपने बेस्ट क्वालिटी तो नहीं निकाला. इफ यू आर एबल टू टेक दैट लॉस एंड गिव अ वेरी गुड प्रोडक्ट एट एन OPP, आपने कस्टमर का माइंडसेट बदल दिया. आज आपको कस्टमर को आपने बता दिया कि 150 का ही पिलो है. द मोमेंट यू इंक्रीज इट टू 250, द कस्टमर विल अगेन शाई फ्रॉम बाइंग इट. Customers are very clear. आज की डेट में Amazon also gives you 1 month या year long price history. They've got that their AI which tells you 1 year old price history. So price is never the decision taking right now. It has to be your reviews, your product ratings, your customers, what they have to say. No one ever says मेरा product बेकार है. Why will I sell a product if it is बेकार? But if people start giving you a vote of confidence, that you were also mentioning about the packed जो delivery मंगा रहे हो. You mentioned some story about it. Right. So अभी क्या होता है ना, when you start growing bigger, आप
you have a supplier pool. Yeah, some you of the have, mistakes you did, huh? some of my mistakes. One of my very big mistakes that I did. So we have a supplier pool. Always have a set of suppliers who start giving, and then suppliers also become very. They would say that's their way of selling their product. I wouldn't blame them also. But then they start pitching you the offer कि हम आपको product full packaging final pack करके भेज देते हैं और आपकी टीम super excited हो जाएगी because now they don't have to do anything. उनको सिर्फ label लगाना है and they have to dispatch. They believe the product inside the box is perfectly fine. अब एज QC तो उनके साइड में होगा ना जो सप्लायर पैक कर रहा है वो that is what people believe. That is what we would also believe कि supplier के end पे QC हो रहा है. क्या हुआ और हमने भी अपने एंड पे हमने कहा they are doing a great job. Let's see. एक्सपर्ट है उस चीज में. अब क्या होता है सप्लायर के अंदर सप्लायर ने मैन्युफैक्चर किया कोई प्रोडक्ट अब आउट ऑफ लेट्स से 100 प्रोडक्ट्स 5 खराब हो गए एज अ सप्लायर बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर मार्जिन दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दोस 5 वो अपने लड़के को जरूर डांट देंगे कि क्या बना दिया खराब कर दिया बट दे वुड से पुश कर दे यार 5 ना इसी 100 की शिपमेंट में डाल दे वहां कौन सा चेक हो रहा है या रैंडम क्यूसी में 100 में 10-15 पीस रैंडम क्यूसी हो जाएगी तो करवा लेंगे रैंडम क्यूसी यहाँ पे लॉट ऑफ न्यू एंट्रेंट सेलर्स अब इसका दूसरा स्टेज भी आता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम दिस हमने शुरू में किया हमारे साथ कस्टमर का क्वालिटी खराब होना शुरू हो गया बिकॉज सब स्टैंडर्ड फॉर दैट मैन्युफैक्चरर इट वाज 5 ऑफ दोज 100 यूनिट्स फॉर मी एज अ मिडिल गाय आई हैड 5 ऑफ दोज 100 यूनिट्स बट एट द एंड कस्टमर जिसको वो एक पीस खराब मिला उसका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस वो था आरटीओ तो कर देगा ना वो सर रिव्यू भी लिख देगा ना रिव्यू भी लिखेगा एंड यू हैव लॉस्ट वन कस्टमर एंड वन बैड रिव्यू इज लाइक लूजिंग 100 कस्टमर्स करेक्ट वन बैड रिव्यू एंड दिस इज राइट इन द मार्केट आप एक बैड रिव्यू पढ़ते हो 100 पीपल विल शाय अवे फ्रॉम बाइंग तो आपका लॉस हुआ अल्टीमेटली हमारा सो एज अ प्रैक्टिस हमने सारा पैकेजिंग बंद करवा दिया प्री पैक्ड हम कुछ भी नहीं लेते हैं 100% QC happens in our own warehouse. Even if that means hiring 2 extra people to do a QC, hire them. Don't shy away from spending that extra 15, 20, 30K. That is going to bring world of difference to your product. आपके end पे जब product खुद देख के जाया जाता है and give your QC team a free hand. ये सबसे ज़्यादा sellers क्या करते हैं ना हमने भी शुरू में किया थोड़ा सा है ना जाने दे थोड़ा सा है ना जाने दे योर थोड़ा सा एंड देयर थोड़ा सा की डेफिनेशन नहीं है देयर इज नो डेफिनेशन टू थोड़ा सा आपके लिए वो हल्का सा टेढ़ा इज ओके उसके लिए वो पूरा टेढ़ा इज ओके यू हैव टू क्रिएट अ एसओपी यू हैव टू पुट अ स्टैंडर्ड एंड से दिस इज व्हाट विल गो टू द कस्टमर एनी डेविएशन फ्रॉम हियर पुट अ हॉल्ट टू इट एंड यू आल्सो मेंशन दैट आपके जब हाउ डू यू केम टू नो कि आपका ऑटोमेटिक जो पैकेज वाला आइटम में कुछ था आपने कुछ बताया था right so हुआ क्या that is where the whole learning came so we were doing one product we were selling about 2000 units every month and my team would get bored कि यार ये पीस आता है QC करते हैं पैक करते हैं और सप्लायर ने मुझे एक दिन कन्वीनियंटली बोला अरोड़ा जी 25 रुपए आप पैकिंग पे खर्च करते हो ये 25 रुपए आप मुझे दे देना आप 25 क्या मुझे 20 ही दे देना मैं ही पैकिंग करके आपको डायरेक्ट भेजूंगा आप डायरेक्ट लेबल लगा के भेज देना हम भी खुश थे टीम भी हैप्पी थी देन रैंडम QC कर लेंगे हाँ कि रैंडम QC हो जाएगी बट वी स्टार्टेड in this case we've got a team and we've got Kanu and her team which diligently looks at sales on a very daily basis we work on a ASIN level sales हम ASIN levels की sales को track करते हैं on our vendor portal and our seller portal on a very diligently weekly daily basis पे भी reports मांगते हैं कई बार हमारे vendor managers परेशान हो जाते हैं कि यार ये daily report मांग लेते हैं sales की but we tap everything in front of it and we do a data analysis we use all the AI tools to ensure कि even if there is any deviation happening in the sales जहाँ dip आ रहा है that's where you have to deep dive your product you can't let a product go into end of life and then so कि यार 1000 बेचता था 2000 बेचता था और आज 200 यूनिट रह गए the moment it starts dipping is the moment you have to see कि यहाँ पे तो what could be the reason पढ़ना शुरू हुआ उस प्रोडक्ट का क्यों का so वो प्रोडक्ट हमारा 2000 यूनिट से drop down to 1600 and that's where the whole alarm was raised by the team member and they said despite running all the ads despite having everything we have started seeing a dip in this we are maintaining the same ad spend we are maintaining the same cost we are maintaining the same ROAS everything is customer interest down हो गया हमारा कस्टमर इंटरेस्ट कैसे डाउन हो गया कस्टमर इंटरेस्ट डाउन हो ही नहीं सकता सर 140 करोड़ लोग हैं हम
We cannot, on paper हम 140 पर करोड़, लोग we तो ये cannot बोलोगे lose. ना आपको कि कस्टमर ने बाई नहीं किया तो सेल कैसे होगा? बाइंग इंटेंट, लोग कहते हैं कि बाइंग इंटेंट खत्म हो गया. सर बाइंग इंटेंट खत्म करने के लिए एक हाउस होल्ड भी आज की डेट में 40 करोड़ हाउस होल्ड है. मेरी इंटेंट खत्म नहीं हो सकती है. मैं एड भी उतनी सर्व कर रहा हूँ, मैं सारे कस्टमर्स को ढूंढ रहा हूँ, बायर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट डाउन हो रहा है. So You will that's why you have dig to down, deep dive. You have to find the reasons. You have to find, पढ़ो रिव्यूज, पढ़ो रिटर्न्स, पढ़ो सबसे ज्यादा, मतलब any sellers they filter and they look at recent reviews and they say best reviews. I am the first person in my team reviews from the negative. हम कहते हैं 1-2 स्टार के पहले पढ़ो, क्या बोल रहा है, डब्बा टूटा मिला, पैकेजिंग खराब थी, ये खराब, एंड बेस्ड ऑन दैट चेंज. पैकेजिंग खराब है, पैकेजिंग इंप्रूव करो. प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, इंश्योर हाउ टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल, मोर यूजफुल फॉर द कस्टमर. प्यार प्रोडक्ट से नहीं करो, प्रोडक्ट से कोई प्यार नहीं होगा. प्रोडक्ट की लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, एक टाइम के बाद प्रोडक्ट बनेगा, बेल कर्व लेगा, इट विल गो डाउन, प्रोडक्ट बदलता रहेगा. इंश्योर कि आपके पैरामीटर, आप यू आर वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन. किससे अफेक्शन करें, प्यार किससे करें? कस्टमर से. सर कस्टमर और Customer बिजनेस से. So that's great. Now coming back to the last section, the final section of our podcast, the rapid fire question. So we'll have one questions, one for you. ठीक है? I'll start with you first. Amazon, Myntra or quick commerce, which are your best, you're betting on for the next 3 years? Amazon. Best decision you made in the business, or you made and you saw in the business? Okay, I came back to my business. So Yeah. that was the So that was the best decision. So Best decision. एक से भले दो, एक और 11 ना? right. एक और 11. Anything for you? Oh, I wanted her in the system. Yeah. That was the ultimate goal. Yeah. Believe me, she joined in and we've crossed 2 plateaus since then in Okay. sales. Every sales has a plateau. Yeah. We skipped 2 plateaus since the time she's been there. She's taking care of a lot of things, repeated Right. things that I cannot do myself. Great. And biggest mistake that taught you the most? Depending too much on on your employees and handing over too much to the same person. Matlab, that's the Without worst losing thing. sight. मतलब with losing sight. You losing- have to be on top of it every correct. time. Be sure to be on top of it, to know what is happening and take those final decisions should be with you. You should have the last call. Working with your spouse, biggest advantage or biggest challenge? Oh. Advantage है, challenge है? Challenges are there. I would say 20% challenges and 80% is advantage, because you know each other, you know what the other person would be thinking, and you can make out what he's you coming up with. So Right. और कुछ कर भी नहीं सकते. No, I would say I am a challenge. क्योंकि I am a very tough guy to work with because I become impatient. I lose my temper. I get hyper at times. मेरा work 24 hours मेरा time लेता है, तो मैं कई बारी that goes over and above the office hours also, where she manages me very very well. She knows कि ये office का spillover आया है and how she wants to tackle is, I mean, she's doing a commendable job being with me all these years. One product from GoHooked you would keep in your own home forever? I think that would be an undershelf, because it actually makes a lot of space in kitchens also and in wardrobes also. So I love it. And there's one more thing, that's a jewelry organizer. It's like a very beautiful piece, and you can put all your jewelry there. So that's Startup life in one word. Exciting. Exciting? Exciting. I love it. I wasted my 5 years working Okay. in a job. I mean, I wasted my 5 years. I should not have. Great. And what's always on your desk? what's always my laptop. It's always on my desk. Like, I cannot go anywhere without it. Fine. So thank you for being here, Mr. Gagan and Kanupriya ji. Thank you. Nice meeting you Thank and you. nice having a chat with you. Thank you. Thank you for having Thanks for your me. time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.